ऑलराइट, सो सबसे पहले errors not affecting ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। सो एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, मीन्स when a transaction is completely omitted from accounting records. So error of omission is when a transaction is completely omitted from the accounting records. That means कि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। You forgot to actually record the transaction. ठीक है, तो जब डेबिट भी नहीं हुआ क्रेडिट भी नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? Errors not affecting trial balance. That means trial balance will still match, will still agree. ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ रहे होंगे, बट दैट इज एक्चुअली दोज बैलेंसेस वुड बी रॉन्ग बिकॉज एक एंट्री आपने प्रोसेस ही नहीं की। ठीक है, ओके, एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स ऑफ ऑटोमेशन। Yes. ओके, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एग्जांपल में परचेज ऑफ मशीनरी by cash $5,000 was completely omitted from accounting records. ठीक है जी, सही है। नंबर वन, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी? When you are purchasing a machine, original entry would be machinery debit, cash credit। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी। ठीक है, नंबर टू, रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री हुई कुछ भी नहीं। ठीक है, व्हाई? Because it was completely omitted from the accounting records. तो कोई मुझे बताएगा कि इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? Say suspense account of 5,000 on both sides. नहीं, करेक्टिंग एंट्री विल बी द ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जब आपने ओरिजिनल एंट्री पास ही नहीं की, आपने ओरिजिनल एंट्री को प्रोसेस ही नहीं किया, ठीक है, बिकॉज यू कंप्लीटली फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, तो ओरिजिनल एंट्री वुड बी द करेक्टिंग एंट्री ना। मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। देखो, we are looking at those errors now which does not affect trial balance, and errors that does not affect trial balance would not result in an opening of suspense account. हम जो लास्ट क्लास तक देख रहे थे वो देख रहे थे वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन होते हैं जिनमें। अब हम वो एरर्स देख रहे हैं जो कि सस्पेंस अकाउंट को अफेक्ट, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जिनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। ठीक है, ओके, चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन।
एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, बट चलो पहले बिफोर कमीशन, एरर प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल इज when an accounting head is changed while recording a transaction, ठीक है। When an accounting head is changed while recording a transaction, example would be आपने एक एसेट को एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया और एक एक्सपेंस को एक एसेट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। Instead of recording an expense, you recorded it as an asset, or vice versa. This is a scenario where you recorded uh, a capital expenditure as a revenue expenditure, or in this scenario, you recorded a revenue expenditure as a capital expenditure, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें क्या होता है। Purchase of motor vehicle $6,000 through bank was incorrectly debited to motor vehicle expense account, ठीक है। You purchased a motor vehicle, but instead of recording it within motor vehicle, you recorded it in the motor vehicle expense account. इसका मतलब है बड़ा क्लियर एरर है। Motor vehicle was an asset and motor vehicle expense is an expense. तो आपने एक एसेट को क्या रिकॉर्ड कर दिया, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। देखते हैं नंबर वन, original entry would be, what would be the original entry over here? तो कोई बताएगा, when you purchase a motor vehicle through bank, what would be the original entry? Sir, motor vehicle debit, where asset increase, and then bank credit, asset decrease. Motor vehicle debit or bank credit, asset increase और asset decrease, ये original entry होगी। Wrong entry क्या बनाई हमने? कोई बता सकता है wrong entry क्या बनाई हमने? Sir, it would have been Motor switched to vehicle, motor debit. vehicle, motor vehicle of 6,000 was incorrectly debited to motor vehicle expense account, ठीक है। तो अब बताओ। Yes, उमर। Motor vehicle expense debit or bank credit. तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया आपने
और बैंक के बारे में कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स वो बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, नाउ what would be your correcting entry? You have identified the error. Instead of this, you recorded motor vehicle expenses. So what would be the correcting entry now? The same as the original entry. No, देखो बैंक तो सही रिकॉर्ड हुआ है ना। सबसे पहले आप मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आज उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, मोटर व्हीकल डेबिट। और मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, इसको खत्म होना है। तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो आज ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ओरिजिनल एंट्रीज रिस्टोर हो जाएंगी। मोटर व्हीकल डेबिट, बैंक क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। तो ओरिजिनल एंट्रीज वुड बी रिस्टोर्ड और ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये द थिंग इज कि जी ओके, कि you had purchased a motor vehicle of 6,000 through bank, but you incorrectly debited it to motor vehicle expense account. सही है। So originally what should have happened is motor vehicle should have been debited and bank should have been credited. This should have been the original entry. But instead आपने क्या किया, मोटर व्हीकल के डेबिट होने के बजाय मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस डेबिट हो गए और बैंक क्रेडिट हुआ। सही है, तो दैट वाज द एरर। इंस्टेड ऑफ दिस मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट हुआ। आज जब करेक्टिंग एंट्री करोगे तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को तो खत्म करोगे ना, बिकॉज दिस शुड नेवर हैव बीन रिकॉर्डेड। और मोटर व्हीकल को डेबिट करोगे बिकॉज दिस शुड हैव ओरिजिनली बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो इसको रिस्टोर किया मोटर व्हीकल को डेबिट करके और मोटर व्हीकल एक्सपेंस को क्रेडिट करके उसको खत्म किया। So this was actually error of principle. Why do we call it error of principle? Because आपने एक एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। An asset was recorded within expenses. That is why it is error of principle. Principally, it is wrong. You cannot change accounting heads while recording a transaction. ठीक है जी। Sir, won't we write suspense account anywhere? नो बेटे, हम वो देख रहे हैं, वो वाले एरर्स देख रहे हैं which does not affect ट्रायल बैलेंस। दैट मीन्स जो कि ट्रायल बैलेंस का अमाउंट ऑफ डेबिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, इसको मेंटेन रखेंगे। जब अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मेंटेन रहेगा तो ट्रायल सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। तो लास्ट क्लास तक हमने जो भी एरर्स देखे थे दोज वर दोज व्हिच वर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, राइट? बट ये वो एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, Sir Tamur. यस। Sir, I'm just asking, in the examination, can we be asked कि मतलब ये किस तरह का error है, मतलब ये is it a error of omission, error of principle, or can we अगर हमें example दोगे तो? हाँ देखो, यू विल बी आस्क्ड, फॉर एग्जांपल उसने दिए होंगे कोई 4 एरर्स और पूछा होगा कि आइडेंटिफाई करो कौन से एरर्स हैं। whenever you are asked to identify, those errors would be errors not affecting trial balance. ठीक है, only errors not affecting trial balance have a distinction, have a name. ठीक है, तो आप सिर्फ वही ये जो एरर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करें सिर्फ इनका ही नाम है। ठीक है, बाकी there is no specific names for errors that affects a trial balance. तो whenever it is asked from you कि जी आइडेंटिफाई करें आप एरर्स, तो ये पूछा होगा कि जी बताएं कि एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में से कौन कौन से एरर्स हैं। ठीक है, अच्छा समझ गया सर, थैंक यू। ओके। उसके बाद नंबर 3, एरर ऑफ कमीशन
ठीक है जी। एयर ऑफ कमीशन में when a different account is used to record a transaction within same accounting head, ठीक है? Principally, what was wrong that you had changed the accounting head, but over here accounting head is not changed, but you had used a different account, ठीक है? Okay. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. हाँ, rental insurance $650 was incorrectly debited to wages account. ठीक है? Now, as you can see over here, कि rental insurance भी expense है and wages भी expense है. तो accounting head remains unchanged. Expense में record हुआ, but you recorded in a different account. Instead of recording in rental insurance, you recorded this in wages account. ठीक है? So okay जी, original entry क्या होगी इसकी? कोई बताएगा मुझे ओरिजिनल एंट्री? अच्छा, ईशाल, फिजा, इफ्रा, जाम शामिर, हमजा सलीम, बिलाल, ऑन. कोई बताएगा मुझे इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? हाँ जी, एनीवन? ऑन, बिलाल, ईशाल, फिजा, हमजा, इफ्रा, जाम शामिर, महा. Sir, expense increase, rental insurance. अच्छा जी, रेंटल इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट. Expense increase, asset decrease. This was the original entry. But wrong entry क्या बनी इसमें? Instead of recording rental insurance, हमने क्या किया? Wages लिख दिया था. Wages debit और बैंक क्रेडिट. ठीक है जी. Expense increase, asset decrease. आज इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे? Rental insurance debit and wages credit. रेंटल इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे क्योंकि इसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन ये डेबिट नहीं हुआ था, तो आज इसको रिस्टोर करने के लिए इसको डेबिट करेंगे. और वेजेस शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड, वो तो इनकरेक्टली हमने डेबिट कर दिया, तो आज वेजेस को खत्म करने के लिए वेजेस को क्रेडिट कर देंगे ताकि वेजेस खत्म हो जाए. ठीक है जी. सो दिस वाज एरर ऑफ कमीशन वेयर अकाउंटिंग हेड इज नॉट चेंज्ड, बट क्या हुआ? अकाउंटिंग हेड चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेम अकाउंटिंग हेड में डिफरेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई थी गलती से. ठीक है? यू कैन सी ओवर हियर इन दिस कि देखो रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहे हैं.
ठीक है, इवन दिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहे हैं, इवन दिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स जब आप रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट को इक्वली प्रोसेस कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होगा ना, बिकॉज आपने डेबिट और क्रेडिट तो पूरा किया है। ठीक है, ओके जी। तो अब आ जाते हैं एरर ऑफ कमीशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ओमिशन हो गया। ठीक है जी, इसके बाद एरर ऑफ कंप्लीटली, या चलो एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल में क्या होगा, कोई बता सकता है गैस करके व्हाट वुड बी एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल? सर मीनिंग वो जो चीज डेबिट में करनी थी वो क्रेडिट में कर दी, क्रेडिट की डेबिट में कर दी। बिल्कुल सही है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिवर्स्ड इन एरर, ठीक है, इसमें मतलब जो डेबिट में करना था वो क्रेडिट में कर दिया, जो क्रेडिट में करना था वो डेबिट में कर दिया। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं डेबिट को आपने क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, discount received $600 was incorrectly debited to discount received account and credited to supplies account. ठीक है, discount received of 600 was incorrectly debited to discount received account and credited to supplies account. सही है जी। सबसे पहले देखते हैं जी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है डिस्काउंट रिसीव की। कोई बताएगा डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेएबल इज सप्लायर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। 1000 ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, लायबिलिटी डिक्रीज और इनकम इंक्रीज, दिस इज द ओरिजिनल एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आपका एरर कौन सा है? एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। रिवर्सल मींस जो डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट करना था वो डेबिट कर दिया। दैट मींस रॉन्ग एंट्री किस तरह हुई होगी पास? डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हुआ होगा एंड अकाउंट पेएबल 6000 क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया। सो व्हाट वुड बी योर करेक्टिंग एंट्री? हाँ जी, तो इस सिनेरियो में करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? सर उससे उल्टा लिख देंगे वापस से ओरिजिनल एंट्री। अच्छा जी, तो अब हम इसको ओरिजिनल एंट्री की तरह रिस्टोर तो करेंगे, सही है।
अकाउंट पेबल डेबिट होना चाहिए था लेकिन क्रेडिट हो गया, तो आज क्या करोगे? अकाउंट पेबल को वापस से डेबिट करोगे, बट विद डबल अमाउंट। व्हाई विद द डबल अमाउंट? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? So that it can be minus double, मतलब कि उसमें 6,000 हट के अगर आप 12,000 उसमें से निकाल रहे हैं तो 6,000 वापस उसमें आ जाएगा। अच्छा देखो, होता है इस तरह है कि देखो ये आपका जीरो था, आपने एक चीज को यहाँ लेकर आना था 6,000 तक, यहाँ पर लाना था, लेकिन आप गलती से उसको यहाँ ले आए 6,000 को, ये जीरो था। whenever you gonna restore to the original balance, आपको डबल से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, वन टाइम टू एलिमिनेट द एरर एंड वन टाइम टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। तो जब भी रिवर्सल हो जाए, मतलब आप गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दे, तो फिर करेक्शन उसकी डबल अमाउंट से होती है। क्यों? वन अमाउंट is to rectify the error and the other amount is to originally restore what should have been recorded। तो इसलिए ये डबल अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे कि अकाउंट पेबल डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज और डिस्काउंट क्रेडिट, इनकम इंक्रीज। ठीक है, ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस रिवर्सल में कि डबल अमाउंट से क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं सर। और ये लास्ट वाला करेक्टिंग एंट्री हम्म, अमाउंट जो हो रही है। जी जी, हाँ डबल अमाउंट से हो रही है। मैं वापस एक्सप्लेन करूं हमजा क्यों हो रही है डबल अमाउंट से? यस सर। हाँ देखो, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक टी अकाउंट है, रैंडमली कोई सा भी टी अकाउंट है, यहाँ पे 600 डेबिट होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से क्या किया, 600 रिकॉर्ड कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड। Instead of debiting it by 600, you credited this by 600। सही है? गलती हो गई आपसे, क्या करोगे? ऐड हो जाएगा। अब आप डेबिट साइड पे उसको ओरिजिनली रिस्टोर करना है। डेबिट साइड पे कितना कितना रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे पहले तो 600 करोगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, और फिर वापस एक दफा 600 करोगे ना ताकि रिस्टोर हो जाए। तो फर्स्ट वाला करेक्शन होगा, सेकंड वाला रिस्टोर होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम यू रिकॉर्डेड टू करेक्ट इट, सेकंड टाइम यू रिकॉर्डेड टू रिस्टोर द ओरिजिनल बैलेंस था। डबल से आपको करना पड़ेगा। ठीक है हमजा? जी सर। तो अब यहाँ तो दोनों डेबिट भी उल्टा हुआ, क्रेडिट भी उल्टा हुआ, तो आपको डिस्काउंट रिसीव ओरिजिनली क्रेडिट साइड पे लेकर आना, तो क्रेडिट उसको डबल से किया और अकाउंट पेबल को भी आपने डबल से डेबिट किया। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन्स? शैल वी मूव ऑन? यस सर। ठीक है जनाब, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल हो गया। ठीक है जी, नंबर 5, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? व्हेन द सीक्वेंस, मैं जरा इसको वापस लिख देता हूँ, समझ आएगा नहीं वापस से। When the sequence of digits is changed while recording a
transaction. What do I mean when I say sequence of digits? For example, 3894 आपने गलती से 3984 कर दिया. क्या फर्क है दोनों में? सर अगर डिजिट्स का फर्क होता तो पूरी वैल्यू ही गलत हो जाती है ना. अब तुम देखो ना, it is 3894 but instead it is recorded as 3984. This is error of transposition. सही है. 8 इधर चला गया, 9 इधर आ गया गलती से. सही है. ओके, देखते हैं जी, इसका एग्जांपल देखते हैं. Discount allowed $3150 was entered in the accounting records as 13510. ठीक है जी. कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए था? 3150 को. और कितने का रिकॉर्ड हुआ? 3510 का. ओके, ठीक है. नंबर 1, ओरिजिनल एंट्री. डिस्काउंट अलाउड की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? सर डिस्काउंट अलाउंट डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज होता है ना वो, एंड देन लाइक अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एसेट डिक्रीज. ठीक है. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, दिस इज द ओरिजिनल एंट्री by 3150. Let's see what was the wrong entry over here. Wrong entry में discount allowed debit but with 3510. Account receivable is also credited by 3510. ठीक है. अब आप पहले तो मुझे बताएं इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस कितना है? हाँ जी, कितने डिफरेंस है? 360 का डिफरेंस है. हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि दोनों ट्रांसपोजिशन के जब भी एरर होगा ना, तो जो भी डिफरेंस होगा, it is always divisible by 9. Answer is always going to be a whole number. ठीक है. तो दोनों में जो भी, जैसे तुम यहाँ तुम देख लो, इन दोनों में भी जो भी डिफरेंस था, it is easily divisible by 9. एक होल नंबर होता है. खैर, anyways, तो डिफरेंस इज 360 इन दिस. सही है. आप मुझे बताएं डिस्काउंट अलाउड एंड अकाउंट रिसीवेबल 360 से ज्यादा रिकॉर्ड हुए ना, जो भी जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है. मतलब डिस्काउंट अलाउड इज ओवर रिकॉर्डेड बाय 360 और अकाउंट रिसीवेबल भी 360 से ज्यादा कम हुआ है. तो आज मुझे बताएं क्या होगा. आपको इसमें कम करना है या इसमें बढ़ाना है? $3150 रिकॉर्ड होना चाहिए था, 3510 रिकॉर्ड हो गया. आपने इसमें कम करना है या इसमें बढ़ाना है? हाँ जी. डिस्काउंट अलाउड ज्यादा रिकॉर्ड हो गया या कम रिकॉर्ड हुआ? डिस्काउंट अलाउड कम रिकॉर्ड हुआ है ना, तो आपने बढ़ाना है वो, नहीं, कम करना है. डिस्काउंट अलाउड 3510 को 3150 पे लाना है. हाँ, 3150 रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट यू रिकॉर्डेड एज 3510. तो आपने उसको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, अब उसको कम करना है. कम करने के लिए क्या करोगे? यू रिकॉर्डेड ऑन द ऑपोजिट साइड. अगर इसको बढ़ाना होता तो यू वुड हैव रिकॉर्डेड ऑन द सेम साइड जस्ट टू इंक्रीज इट, बट इसको कम करना है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ऑन द
अपोजिट साइड। तो जी आपका डिस्काउंट अलाउड तो 360 से क्रेडिट होगा, और अकाउंट रिसीवेबल भी ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो उसको भी कम करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल 360 से डेबिट हो जाएगा। अब तुम देखो डिस्काउंट अलाउड 3510, अगर मैं यहाँ पे टी अकाउंट्स बनाऊं और अकाउंट रिसीवेबल, तो ये 3510 और ये आ गया था 3510। आज जब मैं अकाउंट रिसीवेबल को 360 से डेबिट करूंगा तो बैलेंस कैरेट डाउन 3150 आ गया मेरे पास। और अगर मैं डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ 360 से, तो बैलेंस कैरेट डाउन आ गया मेरे पास 3150, जो कि ब्रॉड डाउन इधर हो जाएगा 3150, ये इधर आ जाएगा 3150। दिस मीन्स कि अगर अंडर रिकॉर्ड हो गए हैं तो आप देखो ये यहाँ पे ओवर रिकॉर्ड हो गए। जब ओवर रिकॉर्ड होगा तो ऑपोजिट साइड पे एंट्री करके इसको बराबर करोगे, बट अंडर रिकॉर्ड जिस दिन हुआ तो क्या करोगे, उस दिन आप सेम साइड पे रिकॉर्ड करोगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, ताकि ये समझ में आए। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। तो ओके, एग्जांपल बी, sales return of 2650 was entered in the accounting records as 2560। ठीक है जी। तो ओरिजिनल एंट्री कितनी क्या होगी, सेल्स रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? ओरिजिनल एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट 2650, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2650। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? रॉन्ग एंट्री क्या होगी यहाँ पे? सेल्स रिटर्न 2560 और account receivable 2560. What actually happened over here is कि 2650 को आपने रिकॉर्ड कर दिया एज 2560। कितने का डिफरेंस है? 90 का। जी सर। ठीक है, आप मुझे बताएं, यू शुड हैव रिकॉर्डेड 2650 बट आपने रिकॉर्ड किया 2560। 90 से अंडरस्टेट किया ना, कम रिकॉर्ड किया ना। जी सर। अंडरस्टेट किया बाय 90। तो आज इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? यहां पर आपने करेक्टिंग एंट्री क्या पास की थी? यू पास्ड एन ऑपोजिट एंट्री। व्हाई? बिकॉज यू ओवर रिकॉर्डेड इट। बट यहां पे सिंस यू अंडर रिकॉर्डेड इट, यू गोना पास एंट्री ऑन द सेम साइड। सेल्स रिटर्न 90 और अकाउंट रिसीवेबल 90। तो 2560 प्लस दिस 90 इज इक्वल टू 2650। ऐसा ही हो जाएगा। और ओरिजिनली देखो 2650 ही है। तो when you gonna under record, तो क्या करोगे? whenever you gonna under record तो होगा क्या कि जी आप उसको सेम साइड रिकॉर्ड करके उसको बराबर करोगे। ठीक है जनाब। ओके, आज जरा अटेंडेंस ले लें भाई।
कौन नहीं है? याया नहीं है, और इरज नहीं है, और अरीशा भी नहीं है। ओके, फिजा है, अरीशा नहीं है, इरज नहीं है, याया नहीं है, बिलाल है, उमैर है, तस्नीम है, बतूल है। Sir, यस, where will you post the recording of these or not? यस। पुरानी भी एक रिकॉर्डिंग मुझे पोस्ट करनी है। Okay, sir. And हाँ, sir, what assignment did you do on Monday? I didn't come. you didn't submit that? Sir, I didn't come. अच्छा, ठीक है। Okay, I'll open that assignment as well, so you can submit it again. Okay, Okay, sir, but that assignment had no description of what to do. Can you tell me what to do? okay. वो जो मैंने उसमें पोस्ट किया था, I it was actually a class work. तो उसमें क्या था? I had shown the question in class, ठीक है? And you were supposed to do it in class and submit it. तो Okay. ये था उसमें. It was a class work actually. तो I can get, so you can send me the question. okay, all right. So ये हो गए. And the last question, last type of error is, there's this error known as, it's the last one, which is error of original entry. Okay. Error of original entry is basically, it's not transposition, it's basically कि आपने पूरा amount ही change कर दिया. ठीक है. When a different amount is used to record a transaction. ठीक है. मतलब आपका अकाउंटेंट पता नहीं किन सोचों में कि किस अमाउंट को क्या रिकॉर्ड कर दिया उसने, कोई लिंक ही नहीं था. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. Receipts from a customer $900 was recorded in the books as 250. ठीक है. मतलब आपने कस्टमर से रिसीट्स की 900, लेकिन अकाउंटेंट ने 250 रिकॉर्ड कर दी. गॉड नोज व्हाई, बट की इसने गलती. ठीक है जी. तो नंबर 1, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री और करेक्टिंग एंट्री. ओरिजिनल एंट्री में when you are receiving money from customer, तो entry would be bank debit 900, account receivable credit 900. Why? Asset increase and asset decrease. ठीक है. लेकिन गलती से क्या हुआ रॉन्ग एंट्री में? इंस्टेड ऑफ 900 उसने क्या किया? 250 रिकॉर्ड कर दिया. ना देखो, ट्रांसपोजिशन में क्या था? द डिजिट्स वर द सेम बट द सीक्वेंस वर ऑल्टर्ड. बट यहाँ क्या है? बिल्कुल डिजिट्स चेंज है. तो बैंक डेबिट 250, account receivable credit 250. Now, what would be the correcting entry?
बिल्कुल ट्रांसपोजिशन की तरह इसमें भी होगा कि जब आप अंडर रिकॉर्डिंग करोगे तो सेम साइड रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, ताकि उसको इक्वल करो, और ओवर रिकॉर्डिंग होगी तो ऑपोजिट साइड रिकॉर्डिंग होगी ना। 900 रिकॉर्ड होने चाहिए थे, 250 रिकॉर्ड हुए, तो रिमेनिंग कितने रिकॉर्ड होंगे? बैंक विल बी फर्दर डेबिटेड बाय 650, ठीक है, and account receivable is going to be further credited by 650. So now over here you can see कि 250 और 650 टोटल हो गए 900, 250 और 650 टोटल हो गए 900, जो कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी 900 की, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन और ओरिजिनल एंट्री में फर्क किया कि ट्रांसपोजिशन में डिजिट्स आर चेंज, 2650 2560 रिकॉर्ड हुआ, बट ओरिजिनल एंट्री में क्या था, 900 को आपने 250 रिकॉर्ड कर दिया। तो ओरिजिनल एंट्री इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोजिशन बिकॉज even the digits are changed and the amount तो match नहीं करती, ठीक है। So these were the errors that does not affect trial balance. When I say does not affect trial balance, I mean कि ये वो errors हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है एरर होने के बावजूद, बट ट्रायल बैलेंस को ये अफेक्ट नहीं करते। तो ये था। Okay, so I will be actually posting this video and I'll share these two documents as well. तो ये मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ। Alright, Okay, sir. alright. Any question, anyone? No, sir. Anyone? Any question? नहीं? चलो. Okay. Okay, sir. Allah. I'll see you all tomorrow. Allah Hafiz. Allah.